सो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो कितनी सारी ऐसी चीज़ें होती है जो हम अपने स्कूल या कॉलेज में नहीं सीखते। लाइक आवर कॉलेज और स्कूल डजंट टीच ऑल दिस थिंग्स इन आवर लाइफ, बट ये सारी चीज़ें हमारी लाइफ में इतनी ज़्यादा ज़रूरी होती है that we can't even say, like so much important in our life, but nobody teach us all these things. But knowing all these things makes our life so easy that you will get to know after this video. So we will get to know things which our college or school doesn't teach us. So let's get into this video. So number one thing is knowing yourself. How much important it is? अपने आप को जानना. Is it important or not? See, if you don't know yourself, you don't know anything. मान लेते हैं आपको सब पता है, लाइक दूसरों के बारे में, या फिर you know about the world. When this thing happened, when that thing happened, or you know how to crack an interview, or you know how to pitch, but you don't know yourself, your own emotions. You don't understand yourself. Is it worth it? Like बाद में कभी ऐसा हुआ कि कोई प्रॉब्लम आई, you won't be able to deal with it because you don't understand yourself, your own emotions, how you react in different situations. You don't know anything about you. And this, not our college, not our school teach us. Nobody teaches us this one thing. Understanding yourself, understanding how you react to different situations, to different people, places, कुछ भी हो सकता है. So it's very important कि आप अपने आप को समझो, जर्नलिंग करो. That's very important. Sit with yourself silently without any distraction or people. Slowly you will get to know कि आपको क्या चीज़ें इफेक्ट कर रही है या फिर कैसे थॉट्स आ रहे. Sit with yourself, and you will sit with yourself ना, different thoughts आएंगे, and you will understand how your brain is working, which thoughts are coming into your mind. That is how you recognize, that is how you analyze yourself कि क्या thoughts आ रहे. Okay, why am I getting these thoughts? क्या affect कर रहा है, क्या चीज़ें हैं. When you start doing this, when you write down your thoughts, you will slowly start realizing that oh okay, I am getting all these thoughts and मैंने कभी notice भी नहीं किया. एंड तब आप रियलाइज़ करना शुरू करें कि दिस इज़ द रीज़न वाई आई एम बिहेविंग लाइक दिस इज़ द रीज़न वाई आई एम बिहेविंग लाइक दिस फॉर अ पर्टिकुलर सिचुएशन, फॉर टूवर्ड्स अ पर्टिकुलर पर्सन. कुछ भी हो सकता है, बट दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट योर सेल्फ, क्योंकि हम अपनी पूरी ज़िंदगी में दूसरों को समझने में लगा देते हैं कि ओ ये पर्सन इसलिए ऐसा कर रहा है, इसकी ये मजबूरी होगी, ये होगा, वो होगा, या फिर to know about other things, but we don't even try to understand ourselves, which is so fair, which is very important in our life. Like it's very important. So start getting to know yourself, journaling karo, like I said, sit with yourself silently. And next thing is how to manage our money. So this, to no college or no स्कूल टीचर्स आज दिस वन इम्पॉर्टेंट थिंग, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हमारी लाइफ में. फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपके जानना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. एंड बाय फाइनेंशियल मैनेजमेंट आई डोंट जस्ट मीन दैट हाउ टू मैनेज योर मनी, बट ऑल्सो नोइंग अबाउट टैक्सेस एंड ऑल द अदर थिंग्स अबाउट फाइनेंस, जो कि आपकी रियल लाइफ में इम्पॉर्टेंस रखती है. यू शुड नो अबाउट ऑल दिस थिंग्स. Everyone should all know about all these things, because once you start earning, फिर आपको लगेगा oh my god, I don't know all these things, now I have to know all these things by zero. Like it's better you know about all these things, because these are very necessary in our life. Like we don't even know कि टैक्सेस कितने हैं, कौन से टैक्सेस लगते हैं, वो भी हमको नहीं पता. लाइक मुझे भी नहीं पता ऑनेस्टली. लाइक जब तक लाइक मेरा तो सब्जेक्ट था ऑल्दो, बट दोज हु डोंट स्टडी इन देयर स्कूल और कॉलेजेस, लाइक कॉमर्स वाले बच्चों को तो ऑब्वियसली पता होगा, बट अदर देन दैट
नो वन नोज अबाउट दैट, बहुत लोगों को नहीं पता है, बट दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट राइट. बट it's not necessary in our school or colleges that you have to know about this, because they think, oh, how is it important for science people or humanities people? It's not important to know our taxes or financial management. It's not important, but isn't it important? Think about it. Like, it's so important now. Like, so start knowing about all these things. टैक्सेस के बारे में, तुम्हारे अकाउंट्स के बारे में, बैंक अकाउंट्स के बारे में, एवरीथिंग. ऑल दिस थिंग्स आर वेरी नेसेसरी इन योर लाइफ. सो स्टार्ट नोइंग अबाउट ऑल दिस. एंड obviously how to manage your finance, very important, like very very important. If you don't know how to manage your finance, आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ पैसा जा रहा है. ऐसे आप वेस्ट कर रहे हो, like just like that. And once you have a UPI or GP, oh my god, the way you waste your money, you won't even realize कि आप कितने बेकार चीज़ों में वेस्ट कर रहे हो. लाइक क्या होता है ना, जब आपके हाथ से कैश जा रहा है ना, तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ पैसा गया है. बट इफ़ यू आर यूजिंग UPI, यू डोंट रियलाइज दैट इट्स योर अकाउंट. हाँ, आपके ही यहाँ से पैसा जा रहा है. हमको लग रहा है कि नहीं, हमारा तो पैसा है नहीं है, जैसे कोई और पे कर रहा है हमारे लिए. बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो इम्पॉर्टेंट कि कहाँ आप मैं अपना पैसा खर्च कर रहे हो, किस जगह पे कर रहे हो. लाइक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट ऑल दिस. पैसा है, डजेंट मैटर कि पैसा है, इसका मतलब ये नहीं है कि जस्ट उड़ा दो. नहीं, इवन इफ़ यू हैव लाइक इवन इफ़ यू आर अ बिलियनर मिलियनर, स्टिल इफ़ यू डोंट नो हाउ टू मैनेज योर मनी, कोई फ़ायदा नहीं है कितना कमा रहे हो. सारा आपको लगेगा कि मेरे पास पैसे ही नहीं है, स्टिल लगेगा पैसे नहीं है. इफ़ यू डोंट नो हाउ टू मैनेज दैम इफेक्टिवली, लाइक यू शुड नो दैट. नहीं तो लाइक मैंने बहुत बार बताया भी होगा, लाइक व्हेन आई फर्स्ट यूज UPI इट वॉज वेरी हार्ड, बिकॉज नहीं पता चला. एंड फर्स्ट तो आप करते हो, बिकॉज कॉलेज स्टूडेंट्स बहुत सारे ऐसे होंगे जो यू नो फर्स्ट टाइम दे आर यूजिंग UPI एंड ऑल, एंड दे आर यूजिंग इट जस्ट लाइक दैट. हाँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, जो मन कर रहा है वो खरीद रहा है, जो मतलब उसका कोई फ़ायदा भी नहीं है. एंड आई यूज टू बी लाइक दैट ऑल्सो. ठीक है, मैंने भी किया है ऐसा. But then I realized, oh my god, how much I am wasting my money. And when I realized that, what I did कि मैं पूरा UPI से खर्च करना बंद कर दिया. एक तो कीप कैश विथ योरसेल्फ. ठीक है, ऐसा नहीं है कि UPI आ गया तो कैश ना ही रखो, आप है ही नहीं मतलब है, ऐसा नहीं होना चाहिए. ठीक है, सो बिकॉज आप जब कैश से पेमेंट करते हो ना, यू रियलाइज़ कि अच्छा यहाँ पे पैसे जा रहे, क्योंकि आपके हाथ से पैसे जा रहे हैं. ठीक है, एंड UPI में हो रहा है ओके जा रहे हैं, कोई पता नहीं चल रहा है, एक्चुअली भी रियलाइज़ नहीं होता. सो डू दैट एंड कीप अ ट्रैक ऑन इट. ठीक है, मैंने लाइक बोला, डजेंट मैटर हाउ मच यू आर अर्निंग इफ़ यू डोंट नो हाउ टू मैनेज योर मनी प्रॉपरली. इट डजेंट मैटर हाउ मच यू आर अर्निंग, इफ़ यू आर बिलियनर मिलियनर, डजेंट मैटर. आपको हमेशा से लगेगा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, लाइक नहीं है. And my father always he says this one thing that पैसे हमेशा ऐसे खर्च करने चाहिए कि आपके पास कल के लिए बचे रहे. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको किसी के सामने हाथ जोड़ने की ज़रूरत पड़े या फिर किसी से मांगना पड़े. इट्स नॉट गुड. एंड फॉर ऑल द कॉलेज स्टूडेंट्स आई एम टेलिंग यू ऑल दैट बी वेरी कॉशियस वेर यू आर स्पेंडिंग योर मनी, वेर यू आर स्पेंडिंग जस्ट even it's not necessary you are spending it just like that because ठीक है हमारे पेरेंट्स दे रहे, अगर दे भी रहे मांग रहे हो तो दे रहे, बट दैट डजंट मीन कि तुम खर्च कर दोगे ऐसे. इवन इफ़ यू आर सो रिच, बट दैट डजंट मीन यू विल वेस्ट इट लाइक दैट. इन्वेस्ट इन योर सेल्फ ना, इन्वेस्ट इन योर सेल्फ. अपने लिए कुछ करना शुरू करो, कुछ ट्राई करो, तब आप बोल सकते हो दैट या आई एम मैनेजिंग माई मनी, आई एम इन्वेस्टिंग इन माई सेल्फ. बट अगर आप सारा पैसा ऐसे उड़ा रहे हो, दैट्स नॉट गुड. ठीक है, हमेशा ऐसा खर्च करने चाहिए कि आपके पास इमरजेंसी के लिए या फिर पैसे बचे रहे. आपके पास कुछ पैसे होने चाहिए आपके अकाउंट में, या फिर आपके पास होने चाहिए. ऐसा ना हो आपके पास बिल्कुल ही पैसे नहीं है, एंड दैट विल बी द वर्स्ट. लाइक माई फादर ऑलवेज सेज दिस कि डजेंट मैटर हाउ मच यू आर अर्निंग, बट ऑलवेज
स्पेंड लाइक दिस कि आप तुम्हारे पास पैसे बचे रहे, ठीक है, कल को तुम्हें किसी से मांगने की ज़रूरत बिल्कुल ना पड़े। एंड दैट्स सो इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ। लाइक मुझे तो बहुत लेट रियलाइजेशन हुआ इस बात का, बट आई एम टेलिंग दिस टू यू गाइज। हर चीज़ें खुद एक्सपीरियंस करना ज़रूरी नहीं है, कभी कभी दूसरों की बात सुन लिया करो। सो बी वेरी कॉशियस, ओके, एंड लर्न फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द थर्ड थिंग इज़ हाउ टू हैंडल फेलियर। तो हमारे कॉलेजेस में या फिर स्कूल में तो इट्स लाइक अ थिंग कि if you failed in a subject also and they will be like oh my god, this shouldn't happen, and failure को एक ऐसे देखा जाता है कि you are a loser, आपकी ज़िंदगी ख़त्म अगर आप फेल हो गए तो। बट व्हाट अबाउट लाइफ में तो फेलियर होते हैं ना, बहुत बार सेटबैक्स आते हैं। एंड इफ़ यू आर समवन जिन्होंने फेलियर पहले कभी फेस नहीं किया, एंड इफ़ यू आर फेसिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, it will be the worst, and if you don't know how to handle it, और कोई नहीं सिखाता ये बात, not our parents, not even our college or school, no one teaches us this one thing, how to handle failure. But isn't it very important in our life? कितनी बार ऐसा होता है कि हम रिजेक्ट हो जाते हैं कहीं से, हमें फेलियर का सामना करना पड़ता है, सेटबैक्स आते हैं, एंड हर किसी की ज़िंदगी में आएंगे, लाइफ में आते ही हैं। बट उस मोमेंट में हमको लगता है कि यार अब मैं इससे हैंडल कैसे करूँ, हाउ शुड आई कम आउट ऑफ इट, आई डोंट नो। लाइक मेरे साथ भी ऐसा जब हुआ था ना पहली बार, आई वॉज लाइक ओ माई गॉड, आई नेवर एक्सपेक्टेड दिस टू हैपन लाइक दिस, बिकॉज समटाइम्स योर प्लान्स डजंट वर्क लाइक यू वॉन्ट, एंड देन यू फील लाइक नाउ आई डोंट नो व्हाट टू डू, आई डोंट नो एनीथिंग। And at that time you just need to understand that it's very normal to face a failure. कोई एक चीज़ वर्कआउट नहीं करी इसका मतलब ये नहीं है कि आगे भी चीज़ें वर्कआउट नहीं करेंगी। एक रास्ता बंद होने पे 10 और रास्ते खुलते हैं, एंड दिस नॉट जस्ट अ सेम। कभी भी फेलियर का सामना होना तो उतना पैनिक मत करो, बिकॉज ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो गई है। एक फेलियर, एक रास्ते का बंद होना, एक रिजेक्शन, एक सेटबैक तुम्हारी पूरी लाइफ ख़त्म नहीं कर देती, तुम्हारी पूरी लाइफ अभी बाकी है। इट्स जस्ट अ सेटबैक, जस्ट अ रिजेक्शन, जस्ट अ फेलियर, यस इट्स जस्ट अ फेलियर। एंड बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं दैट दे थिंक ओ एक फेलियर है तो मेरी लाइफ ख़त्म। नहीं, नेवर थिंक लाइक दैट। No matter what people are saying, even if your parents are saying कि अरे तुमने तो क्या कर दिया, no, it's not the end of your life. तुम्हारी लाइफ अभी भी बाकी है, you can make your life, still you can. जस्ट एक फेलियर हो गया, एक रिजेक्शन मिल गया, एक सेटबैक आ गया, it doesn't mean कि तुम्हारी पूरी लाइफ ख़त्म हो गई है। You can try out different things, still you can स्टार्ट समथिंग न्यू। एंड जब तुम ऐसा करोगे ना, तुम थोड़ा सा काम रख के देखोगे, न्यू चीज़ें ट्राई करोगे, इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें भी तुमको फेलियर ही मिलेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर एक चीज़ वर्कआउट नहीं करी, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी सारी चीज़ें भी वर्कआउट नहीं करें। एक फेलियर, एक रिजेक्शन, एक सेटबैक तुम्हारी पूरी लाइफ डिस्क्राइब नहीं करती है। प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस, एंड यू शुड नो दैट हाउ टू हैंडल योर फेलियर। एंड वो कैसे समझ आएगा, व्हेन यू अंडरस्टैंड योर सेल्फ। लाइक आई सेड फर्स्ट में, व्हेन यू विल अंडरस्टैंड योर सेल्फ, तो आपको पता चलेगा कि मेरे इमोशंस ऐसे हैं, मैं ऐसे रिएक्ट करती हूँ, ऐसे सारी चीज़ें मेरे अंदर होती है। यू विल स्टार्ट रियलाइजिंग दैट, तब आपको समझ में आने लगेगा। एंड ऑलवेज रिमेंबर, एक फेलियर, एक रिजेक्शन, एक सेटबैक आपकी पूरी लाइफ रिफाइन नहीं करती है। ये मैं बार बार इसीलिए बोल रही हूँ बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक आपके दिमाग में ये बैठ जाना चाहिए कि जस्ट बिकॉज आज मुझे एक फेलियर का सामना करना पड़ा, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी लाइफ ख़त्म हो गई। बिकॉज कुछ लोग बिल्कुल गिव अप कर देते उस टाइम पे, बिकॉज दे फील कि ओ मेरे से ये नहीं हुआ तो मेरे से कुछ नहीं हो सकता। हो सकता है कि आप उस चीज़ के लिए नहीं बने हो सकता है आप किसी बेटर चीज़ के लिए बने थे, और वो चीज़ आप ट्राई करने से पहले ही हार मान रहे हो। दैट्स नॉट समथिंग यू शुड डू।
दैट्स नॉट समथिंग यू शुड डू, बिकॉज उस टाइम पे हो सकता है कोई आपका साथ ना दे रहा हो, बट आपको कभी भी अपना साथ नहीं छोड़ना है. नेवर गिव अप ऑन योर सेल्फ, बिकॉज नो मैटर दुनिया क्या कह रही है, आपके पेरेंट्स क्या कह रहे हैं, फैमिली क्या कह रही, अगर आप अपना साथ छोड़ दोगे ना तो सब खत्म हो जाएगा. सो प्लीज़ डोंट गिव अप ऑन योर सेल्फ. ठीक है, एक फेलियर की पूरी ज़िंदगी नहीं है. एक एग्ज़ाम, एक इंटरव्यू या फिर कुछ भी, वट एवर इट इज़, वो आपकी पूरी लाइफ नहीं है. वो आपकी लाइफ का एक पार्ट है. वो आपकी लाइफ का एक पार्ट है. अगर आपको वो नहीं मिला, उससे बेटर कोई चीज़ आपको मिलेगी. और आई नो आपने ये बात बहुत सी बार सुनी होगी एंड यू फील लाइक ओ नहीं ऐसा नहीं होता, उससे बेटर नहीं मिलता, बट आपको मिलता है, मिलेगा. जस्ट रिमेंबर दिस थिंग एंड डोंट गिव अप. ओके, बिकॉज एक बार फेलियर हुआ इट डजंट मीन कि पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई. वो एग्ज़ाम, वो एक इंटरव्यू, वो एक अपॉर्चुनिटी आपकी पूरी लाइफ नहीं थी. वो एक पार्ट था आपकी लाइफ का. आपकी लाइफ इससे कई ज़्यादा बड़ी है. ठीक है, आई नो इट्स हार्ड टू हैंडल फेलियर्स, बट यू नीड टू नो हाउ टू हैंडल दैट. You need to know that it's a part of your life. Okay, and the next thing is how to communicate. For introverts like me, they don't know how to communicate. It's very hard for them to know how to communicate. हाँ, नहीं हो पाता यार. मैं सच बता रही हूँ, अभी तो फिर भी मैं कर लेती हूँ, बट पहले तो मैं करती ही नहीं थी. लाइक आफ्टर आई जॉइन कॉलेज मैंने सीखा कि हाउ टू टॉक, हाउ टू कम्युनिकेट विद अदर्स. तो अब मैंने सीखा, मैंने अपने आप को सिचुएशंस में डाला जहाँ पे आई नीड टू कम्युनिकेट विद पीपल, आई नीड टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ सो मेनी पीपल. सो इट्स लाइक दैट. ठीक है, बट कॉलेज या स्कूल में वो आपको सिखाया नहीं जाता, वो आपको खुद सीखना पड़ेगा हाउ टू कम्युनिकेट. ठीक है, एंड वो आप कैसे करोगे? वो आप तब करते हो जब आप दूसरों के सामने अपने आप को लाते हो, अपने आप को ऐसे अनकंफर्टेबल सिचुएशन जहाँ पे आपको लगता है आई कांट डू दिस, आई कैनॉट डू दिस. आपके हाथ काँप रहे हैं, आप बिल्कुल नर्वस हो रहे हो. उस सिचुएशन में भी आपको बोलना है, जाके बोलो. वही है. ठीक है, ये आपको कोई टीच नहीं करेगा, कोई समझाएगा नहीं हाउ टू डू दैट. आपको खुद सीखना पड़ेगा. और वो आप कैसे सीखोगे? जब आप बार बार अपने आप को ऐसे सिचुएशन में डालोगे, यू विल अंडरस्टैंड और स्पीक लाइक दैट. एंड कि पता है क्या, मुझे जितना समझ आए इतने सारे प्रेजेंटेशंस एंड बाकी सारी चीज़ें देने के बाद, इज़ दैट यू डोंट नो कि सामने से क्या क्वेश्चन आने वाले हैं या फिर सामने वाला क्या बोलने वाला है. तब जो होता है ना वो नेचुरली होता है. इवन इफ़ यू आर गिविंग अ स्पीच, प्रेजेंटेशन, इवन इफ़ यू आर टॉकिंग टू समवन, जब आप प्रिपेयर करके गए हो कि हम ऐसे बोलूँगी या फिर फर्स्ट कन्वर्सेशन मेरी ऐसी होगी, अगर मैं स्पीच ऐसे बोलूँगी या प्रेजेंटेशन ऐसे दूँगी, बिलीव मी वहाँ पे जाके कुछ वर्कआउट नहीं कर रहा है, कुछ वर्क नहीं कर रहा है, आप कुछ और ही बोल रहे हो, बिकॉज इट कम्स आउट नेचुरली. सो नेवर ट्राई टू मेमोराइज इट. अच्छा मुझे ऐसी चीज़ें करनी है, ऐसे होगा, बिकॉज वो चीज़ें नेचुरली होंगी. जस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग कि अच्छा अगर आप प्रेजेंटेशन दे दो ना, व्हाट आई डू इज़ दैट मैं समझ लेती हूँ कि हाँ ये टॉपिक्स है, ये है. आई नेवर ट्राई टू मेमोराइज इट, बिकॉज इफ़ यू आर मेमोराइजिंग इट ना, इट विल फील लाइक कि आप रोबोटिकली बोल रहे हो एंड वो सामने वाले को अच्छा नहीं लगेगा. और कुछ लोग होता है कि यार किसी के साथ कन्वर्सेशन भी करनी है तब भी वो लोग याद करके जा रहे हैं, अच्छा मुझे पहले ये पूछना है फिर वो पूछना है, बट वहाँ पे जाकर तो डिफरेंट हो रहा है ना. हो सकता है सामने वाला वैसा रिप्लाई ना दे जो आप सोच रहे हो. ठीक है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हाउ टू नो कम्युनिकेशन स्किल्स आनी ज़रूरी है. इवन इफ़ यू आर एन इंट्रोवर्ट यू शुड डू, बिकॉज कम्युनिकेट अगर आप नहीं करोगे ना तो कनेक्शंस नहीं मिलेंगी तो अपॉर्चुनिटीज़ आप तक बिल्कुल नहीं आने वाली है. सो कैजुअली लाइक जस्ट एज फ्रेंड्स ही बात कर लो. कोई भी आपके सामने है, कुछ नॉर्मल सी बात से आप शुरू कर सकते हो. अब वो मैं नहीं बता सकती कैसे आप शुरू करें, क्योंकि वो मुझे खुद नहीं पता. इट्स लाइक कि जब आप मोमेंट में होते हो ना, थिंक कि आपको इस सीनियर से बात करनी है या फिर इस पर्सन से बात करनी है. थिंक अबाउट इट. कुछ भी आप बात कर सकते हो जाके. एंड
People are not scary as much as you think. Introvert people don't think like that. हमको ऐसा लगता है कि यार क्या मैं बोलूँगी, वो सोचेंगे कि यार मैं कितनी स्टूपिड हूँ। कोई इतना नहीं सोच रहा है बहन, कोई इतना नहीं सोच रहा है। कोई इतना आपको दिन भर बात, उनके पास और भी काम है कि वो लोग पूरा दिन बैठ के ये सोचे कि ओ इस लड़की ने इस लड़के ने ऐसा मुझे बोला था, हाउ स्टूपिड ही और शी इज। डज इट मेक सेंस? आप सोचो कोई स्ट्रेंजर आपसे आके बात कर रहा है कि आप पूरे दिन उसके बारे में सोचते हो कि उसने ये वर्ड ऐसे बोला था, उसने ये इंग्लिश यूज़ की थी। नहीं, राइट? बिकॉज आपके पास और भी काम है करने के लिए, तो आप नहीं सोचते ऐसे बैठ के। सो जस्ट गो फॉर इट। कोई आपको आगे सिखाने नहीं वाला हाउ टू कम्युनिकेट। व्हेन यू स्टार्ट डूइंग इट यू गेट बेटर इनटू इट, ओके? एंड नेक्स्ट इज़ हाउ टू हैंडल चेंज। सो पीपल लाइक मी, इट्स वेरी हार्ड। इट लाइक मेरे लिए बहुत ज़्यादा हार्ड होता था कि मैं चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाती थी ईजिली। शायद अभी भी मेरे लिए डिफ़िकल्ट होता है, बट नाउ आई डू अंडरस्टैंड कि ये चीज़ ऐसी है। आई रिएक्ट लाइक दिस, आई विल नॉट ओवर थिंक अबाउट इट। शायद मैं एक बार सोचूं, बट बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है मेरे अंदर। सो इट्स लाइक कि हम चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। कोई चीज़, हम किसी चीज़ में अपनी लाइफ में बहुत कंफर्टेबल हो गए, हम उस कंफर्टेबल लाइफ से बाहर निकल के उस अनकंफर्टेबल लाइफ में जाना नहीं चाहते। दैट्स वाई वी रेसिस्ट टू चेंज, बट चेंज तो आएगा भी। इट्स यूनिवर्सल लॉ। जो चीज़ अभी चल रही है वैसी पूरी ज़िंदगी नहीं चलेगी। लोग आपसे अलग होंगे, आप ग्रो करोगे, जहाँ पे आज आप हो वहाँ पे आप नहीं रहोगे, उससे निकलोगे, बहुत सारी चीज़ें हैं और वो चेंज आएगा आपकी लाइफ में। नो मैटर हाउ मच यू डोंट वांट इट टू चेंज, इट विल चेंज। जैसे आप स्कूल से पहले कॉलेज जाते हो, यूनिवर्सिटी जाते हो, उसके बाद यू गेट इनटू द रियल लाइफ, ऑफिस और बिजनेस लाइफ, व्हाटएवर इट इज़, उसका आपका वर्क लाइफ शुरू होता है। तो अगर आप नहीं भी चाह रहे हो कि यार ये वक्त यहीं पे थम जाए एंड आई डोंट ग्रो अप, बट ये तो होगा ना, बिकॉज चेंज इज़ यूनिवर्सल, ये होना ही है। बट यू शुड नो हाउ टू हैंडल द चेंज, ठीक है? एंड कई बार लोग बहुत ज़्यादा एंशियस हो जाते हैं, इनको समझ नहीं आ रहा है कि हाउ टू हैंडल इट। ओ माई गॉड, मेरी लाइफ में ये चेंज हो रहा है, मुझे नहीं पता आगे क्या करना है। रिलैक्स रिलैक्स, कुछ ऐसा महाभारत नहीं हो रहा है। रिलैक्स हो जाओ पहले, ठीक है? रिलैक्स से बैठो, अच्छा ये चीज़ें ऐसी चेंज होने वाली हैं, आई शुड टेक वन स्टेप एट अ टाइम। मैं पहले लेके देखती हूँ, अच्छा पहले ये करना है फिर वो करना है। डोंट ओवर थिंक अबाउट इट कि अच्छा पूरी लाइफ ऐसा मत सोचो, अरे यार ये तो ड्रास्टिक चेंज है। ड्रास्टिक चेंज के बारे में मत सोचो कि ऐसा ओवर थिंक मत करो, अच्छा ये हो जाएगा, उसके बाद ये हो जाएगा, उसके बाद ये हो जाएगा। यू विल गेट मोर एंशियस अबाउट इट। डोंट थिंक अबाउट इट दिस मच, ठीक है? थोड़ा थोड़ा एक एक स्टेप लेके सोचो कि पहले मेरा स्टेप, मुझे पहले इतना करना है, पहले मैं इतना करती हूँ, पूरा नहीं सोचना है मुझे। ऐसे करके आप चेंज को एक्सेप्ट करोगे ना, तो इट विल बिकम ईजियर फॉर यू टू हैंडल इट, एंड उसमें आप फिर कंफर्टेबल बनने लगते हो। एंड फर्स्ट थिंग इज टू यू हैव टू फेस इट। सी, इवन इफ यू डोंट वांट टू फेस इट, यू हैव टू फेस इट, है ना? तो आप कितना भी चाह लो कि मैं फेस ना करूँ, मुझे फेस ही ना करना पड़े, आपको फेस तो करना पड़ेगा ना, करना तो आपको पड़ेगा फेस। सो जस्ट एक्सेप्ट इट एंड फेस इट। जितना आप सोचोगे कि मुझे फेस नहीं करना, उतना वो सिचुएशन आपको हॉन्ट करेगी। तो जस्ट फेस इट, okay, just face it and take one step at a time. Don't get anxious, relax रहो, calm down रहो, okay? Deep breathing लो। if you have anxiety problem ना, just take deep breathing, ठीक है? लाइक ब्रेथिंग इन बहुत ज़्यादा करना है। लाइक मैंने कहीं पे ये देखा था रिसेंटली ही, दैट इफ़ यू आर गेटिंग नर्वस और एंजाइटी हो रहा है, तो जस्ट फर्स्ट लंबी ब्रेथिंग लेनी है, ठीक है? एंड डू इट 3 times 4 times, जब तक आप थोड़ा सा काम डाउन नहीं हो जाओ। माइंड को रिलैक्स करो एंड सोचो अभी मुझे क्या करना है। डोंट थिंक अबाउट फ्यूचर कि क्या हो रहा है मेरे साथ, अभी मुझे क्या करना है। ये चेंज आया है, आई हैव टू फेस इट। अभी मुझे फर्स्ट स्टेप क्या लेना है उस बारे में सोचो एंड हैंडल इट कामली। कुछ ड्रास्टिक चेंज नहीं हो रहा है, आपकी पूरी लाइफ ही बदल गई, सब लोग बदल गए, सारी सिचुएशन। यार एक चीज़ बदली होगी ना कुछ तो, ठीक है? अगर 2-3 चीज़ें भी बदल रही हैं, देन भी सारी चीज़ें अपने माइंड में इतना ओवरथिंक मत करो, काम डाउन रहो, रिलैक्स होकर सोचो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, उतना करो बस।
धीरे धीरे स्टेप लोगे, समझ में आ जाएगा, एंड उसके बाद उस सिचुएशन से भी आप फेमिलियर हो जाओगे, कंफर्टेबल हो जाओगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट थिंग इज़ हाउ टू हैंडल relationship problems or how to maintain a healthy relationship. No one teaches us this one thing, ठीक है। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आप सोचो आपके पास भरपूर पैसा है, बहुत सक्सेसफुल हो, बट आपके साथ ऐसा कोई नहीं है जिसके साथ आप वो खुशी शेयर कर पाओ। बिलीव मी, आपके पास सब कुछ है, स्टिल आपको एक वॉइड फील होगा, यू विल नॉट बी हैप्पी। आई नेवर सेड दैट मनी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, but I never also said that relationships are not important, and in our generation we actually don't know how to maintain a good relationships. Like we don't know because हमको लगता है यार क्या ज़रूरत है कोई एफर्ट डालने की इसमें, they know that we love them, they love us, it's about anything like that. Even in our family also we feel like कि अच्छा यार उसमें क्या एफर्ट डालने की ज़रूरत है, नहीं कुछ नहीं, we don't spend time with them, we are just, everyone is just busy in their own life, they don't care कि अपनी फैमिली में ही क्या चल रहा है। But isn't it important? आप सोचो आपके पास सब कुछ है, पैसा है, एंड यू आर वेरी सक्सेसफुल, आप सबसे वेल्थिएस्ट पर्सन हो इस पूरे वर्ल्ड में, बट आपके पास कोई नहीं है कि आप घर जा रहे हो एंड आपका कोई वेट नहीं कर रहे हो वहाँ पे बैठ के, एंड आप घर जाके आपके पास बोलने के लिए कोई नहीं है कि आपका पूरा दिन कैसा गया, बात करने के लिए कोई नहीं है। लाइक आप सोचो वो ज़िंदगी कैसी होगी, लाइक विल इट बी वर्थ इट? सारा पैसा सब कुछ, अगर आपके पास कोई नहीं है साथों में बैठने के लिए, सुकून से बैठने के लिए, बात करने के लिए कोई नहीं है, देन नहीं, राइट? क्योंकि फिर आपको लगेगा कि मैं इन सारे पैसों का, इन सारे सक्सेस का करूँ तो करूँ क्या। I'm not saying that these are not important. Obviously, these are important. I always say this, that this is important. Money is important, but उस चक्कर में हम अपने रिलेशनशिप्स की वैल्यू करना ही भूल गए। Like we feel like it's not even important now. Like ज़ीरो में प्रायोरिटी लिस्ट में लास्ट में भी नहीं आ रहे, सब कुछ आ रहा है पर लास्ट में रिलेशनशिप्स भी आ ही नहीं रहे कुछ। Think about it. We don't know how to maintain a healthy relationship. That's very important thing in our life. Okay, you should know. Like हम लोग क्या हो गया कि हम इतने बिजी हो गए अपनी लाइफ में कि हम एफर्ट भी नहीं डाल रहे कि कोई आपका फ्रेंड है जिनसे आपकी बात नहीं हुई है, एंड आप एफर्ट नहीं डाल रहे हो कि आप उनसे बात भी करो, पूछो भी वो लोग कैसे। कई बार ऐसा होता है दैट दे आर फेसिंग एनी इशू इन देयर लाइफ, प्रॉब्लम्स है सबकी लाइफ में, आपको नहीं पता, एंड आप हो भी नहीं सकते हर बार हर किसी की लाइफ में कि आप बैठ के प्रॉब्लम सुन रहे हो। पर कई बार इफ़ यू आर फ्री, डोंट जस्ट स्क्रॉल रील्स, ओके, ये तो टाइम पास ही कर रहे हो ना, जाओ एंड बैठो उनके साथ, या फिर आप अगर लॉन्ग डिस्टेंस में हो एंड फ्रेंड्स है, बहुत दिनों से बात नहीं, जस्ट कॉल दैम मैन। इतना सोचने जैसा भी कुछ नहीं है, ठीक है। एंड वी डोंट डू दैट, वट वी विल डू कि हम बैठ जाएंगे एंड रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं। लाइक इसका कोई फ़ायदा है नहीं, राइट? हो सकता है आपकी किसी फ्रेंड को आपकी ज़रूरत है, पर हमको ऐसा आजकल ऐसा लगता है यार क्यों ही किसी को डिस्टर्ब करना, परेशान करना, पर आप पूछ लो ना सामने से। लाइक आई ऑलवेज डू दिस वन थिंग कि जिसके साथ मेरा बहुत टाइम से बात नहीं, जब भी मुझे ऐसा लगता है ना कि अरे यार इस पर्सन के साथ मैंने इतने टाइम से हुआ ही नहीं है बात, सो आई जस्ट सेंड देम अ मैसेज कि हे हाउ आर यू डूइंग, दिस वन मैसेज कैन ऑल्सो हेल्प देम। या फिर आप ज़्यादा फ्री हो तो जस्ट कॉल देम ना। एंड अबाउट फैमिली, इट्स लाइक कि हम अपनी लाइफ में तो इतने बिजी हो गए कि हमारे पास टाइम नहीं है अपनी फैमिली के लिए, ठीक है। बैठ के बात नहीं करनी है किसी को, सब अपने मोबाइल में व्यस्त हो गए, बट यू वोंट रियलाइज कि वो टाइम कितना प्रेशियस है। सी दे आर विथ यू एंड यू शुड बी वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट, ठीक है। बिकॉज जब तक हमारे पास जो चीज़ होती है ना, हमें उसकी वैल्यू नहीं होती। आई एम नॉट सेइंग दैट डोंट बी बिजी विथ योर कैरियर और व्हाट, बट आपके पास टाइम तो होता है ना जिसमें आप सिर्फ मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हो, जस्ट टॉक टू देम मैन, यू विल फील सो मच बेटर, ठीक है। आपको रियलाइज़ होगा कि आपके पास क्या है। अभी हम हमेशा ये बोलते हैं आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दैट,
बट जो रिलेशनशिप्स है आपकी ज़िंदगी में, आपके फ्रेंड्स हो गए, फैमिली हो गई, पेरेंट्स हो गए, आर नॉट द इम्पॉर्टेंट इन योर लाइफ। आप सोचो, मैं खुद बता रही हूँ ना, इफ़ ऑल द पीपल अराउंड मी हु आर सपोर्टिंग मी, हु आर ऑलवेज देयर फॉर मी, अगर वो लोग नहीं होते तो मैं यहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाती जहाँ तक मैं अभी भी हूँ, तब तक मैं नहीं कर पाती। वाई? बिकॉज यू नीड दैट सपोर्ट, यू नीड दैट लव, केयर इन योर लाइफ, यू नीड दैट। एंड जो लोग आपको दे रहे हैं, प्लीज़ उनकी वैल्यू करो। बिकॉज हम अक्सर ये देखने में बिजी हो जाते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है, कौन लोग हमें छोड़ के गया, किसने हमें बिट्रे किया, बट जो लोग हैं आपके साथ, क्या आप उनकी वैल्यू कर रहे हो? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पैसा आप कमा रहे हो, अच्छी बात है, पर पैसा कमाने के बाद, सक्सेसफुल होने के बाद, अगर आपके साथ बैठने के लिए भी कोई नहीं है, शेयर करने के लिए वो हैप्पीनेस कोई नहीं है, इट्स नॉट वर्थ इट। ठीक है, एंड I always say this one thing: if you are not enjoying your journey, you will not enjoy the destination also, क्योंकि वहाँ पे जाके आपको फील होगा फिर मुझे और अचीव करना है, और वो हमेशा चलता रहेगा। ठीक है, तो जो आप प्रोसेस में हो ना, उसको enjoy करते जाओ, and spend time with your loved ones, talk to them, talk to your friends, family, parents, because they deserve it. ठीक है, and you should just spend time with them because they are द रियल इम्पॉर्टेंट पीपल इन योर लाइफ। जो लोग आपके साथ तब भी थे जब आपके पास कुछ नहीं था, एंड तब भी रहेंगे जब आपके पास सब कुछ होगा, तो वो लोग आपको भी बिट्रे नहीं करेंगे। सो स्पेंड टाइम विद दैम। एंड कुछ ऐसे बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी होते हैं जो आपको साइलेंटली बहुत ज़्यादा शायद आपके लिए प्रे कर रहे हैं या फिर आपको सपोर्ट कर रहे हैं, दे वांट द बेस्ट फॉर यू, एंड यू डोंट इवन हैव टाइम टू इवन आस्क देम हाउ दे आर डूइंग। रियली आर यू सो बिजी इन योर लाइफ कि बस इतना भी टाइम नहीं है? सबके पास होता है। रील स्क्रॉल करने का टाइम तो आपके पास मिल रहा है ना, तो इसके लिए भी है। ठीक है, और वन मोर थिंग इज़ हाउ टू मेंटेन अ गुड रिलेशनशिप इज़ अंडरस्टैंड अदर्स, डोंट जस्ट थिंक अबाउट योर सेल्फ इन अ रिलेशनशिप, वेदर इट्स अ फैमिली, पेरेंट्स, वट एवर, फ्रेंड्स, योर पार्टनर, हु एवर इट इज़, don't just think about yourself, also think about them. मुझे याद है, मेरी एक फ्रेंड ने मुझे एक बार बोला था बहुत पहले, जब मैं बिल्कुल भी मैच्योर नहीं थी, तो मेरे को उसने बोला था कि रैना, इफ़ यू डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड अदर्स, दे ऑल्सो वोंट अंडरस्टैंड यू, दे ऑल्सो won't think that they should understand you, because you are not understanding their situation, you are not trying to understand them, why they did that। मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रही कि बिट्रे क्यों कर दिया वो अंडरस्टैंड कर रहे नहीं, लेकिन नॉर्मल थिंग्स में ऐसे हमारा आर्ग्यूमेंट नहीं हो जाता, तो वो सारी चीज़ें ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। हो सकता है उनकी वो लोग बिजी थे इसलिए कॉल नहीं कर पाए, हो सकता है ये लाइफ में चल रहा होगा इसलिए नहीं हो पाया वो चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जिसमें हम बहुत ज़्यादा ग्रजेस रख देते। डोंट कीप दैट, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैम एंड कम्युनिकेट। कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ आपको गलत लग रहा है, आपको बुरा लग गया, बोल दो यार, उनको उस बात का बुरा नहीं लगेगा। आई ऑलवेज प्रेफर कि यार मैं बहुत ओवर थिंक करती हूँ, अगर तुम बिज़ी हो ना, लाइक अभी तो मैं अपने फ्रेंड्स का समझती हूँ यार कि वो लोग बिज़ी है अपनी लाइफ, बट और अगर मैं कोई न्यू फ्रेंड बना रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल आई डोंट नो अबाउट देयर प्रायोरिटीज़, उनका स्केड्यूल, आई विल बी लाइक, अगर तुमने मुझे सीन पे छोड़ा है ना, आई विल थिंक अबाउट इट कि मैंने कुछ हर्ट कर दिया, कि उनको कुछ बोल दिया था मैंने प्रीवियसली। जस्ट टेल मी दैट यू आर बिज़ी। अगर आप बिज़ी हो ना, जस्ट टेल देम आई एम बिज़ी फॉर दिस टाइम, मेरा ये चल रहा है तो मैं नहीं बात कर सकती। ऐसे बोलने में कितना टाइम लग रहा है, एंड इट्स अ वे यू आर मेंटेनिंग अ गुड रिलेशनशिप विद द अदर वन, एंड दे विल ऑल्सो अंडरस्टैंड कि हाँ ठीक है, फिर तू ये कर ले, फिर हम बाद में मिलते हैं। बस हो गया ना, सिंपल रखो यार, कम्युनिकेट। ठीक है, ये सारी चीज़ इंपॉर्टेंट है। ट्राई दिस आउट बिकॉज दिस आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन आवर लाइफ, जो हमारे स्कूल टीचर्स या फिर कॉलेज प्रोफेसर्स या फिर हमारी कोई भी हमको नहीं सिखाता है, बट दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। ठीक है, सो सीख लो इससे पहले कि लाइफ तुमको सिखा दे, वो ज़्यादा हार्ड हुई। ठीक है, टिल देन बाय बाय।